Hello everyone, welcome to the YouTube channel Love with Biology, and here is your friend Pulkit Mishra, and this is going to the fourth most important part of our chapter Living World, in which we will cover all such important topics including biodiversity, nomenclature and binomial nomenclature. I will bind up this class by the day after tomorrow, in which I will cover taxonomy and systematics only. So in total 5 parts your chapter will be completed, and you are able to revise each and every topic, you are able to complete each and every PYQ, you are able to solve each and every PYQ based on assertion, reason, based on statement, bias, what else. ठीक है, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है दैट आई विल कवर दिस क्लास इन 2 मोड्स, हिंदी प्लस इंग्लिश. मैं इसको हिंदी में भी करूँगा क्लास को, मैं इसको हिंदी प्लस इंग्लिश मैं ये जो क्लास होगी इसकी जो लैंग्वेज होगी इट विल बी इन हिंदी प्लस इंग्लिश. ठीक है, इट मीन्स इंग्लिश. मैं क्लास को हिंदी में भी करूँगा प्लस इंग्लिश में भी. कुछ मैं स्टेटमेंट्स इंग्लिश में बोला करूँगा विच इज मैनी पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम हिंदी वाइल मैनी पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम इंग्लिश. जस्ट इसी के लिए मैं आपकी क्लास होगी उसको दोनों मोड्स में किया करूँगा. ठीक है, क्योंकि कुछ लोग भाई थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते ही होंगे, राइट, एंड थोड़ी बहुत हिंदी भी जानते होंगे जो बाहर के लोग होंगे. सो विल कवर दिस क्लास इन हिंदी प्लस English, and I think that you are not worried about anything because I'm here to help you with everything about it, everything about the biology. And soon I will definitely give you the surprise, as I told you in previous class. Just wait till your holidays. I will give you the surprise. I will definitely give you the best surprise, which will help you as well as myself. So I think without wasting time, without wasting about the future, we'll cover today's topic including biodiversity and the biodiversity nomenclature and the binomial nomenclature. First of all, what do you understand by biodiversity? आप क्या जानते हो biodiversity के बारे में? ये अपना आंसर आप फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉप कीजिए कमेंट सेक्शन में, so that I can check whether your answer is correct, whether your information is correct about the biodiversity or not. क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को सेम समझते हैं और उसी की वजह से वो गलती कर देते हैं. बट इन रियलिटी इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटीज आर नॉट सेम. देयर इज अ बेसिक डिफरेंस, देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन इकोसिस्टम एज वेल एज बायोडाइवर्सिटी. Biodiversity, bio means living, diversity means diverse, variety. What does the biodiversity means? What does the word biodiversity means? So biodiversity means the variety and the variability in the living organism across the world. It is related to only living organism. But if I talk about ecosystem, अगर मैं बात करूँ ecosystem की, तो ecosystem में biotic as well as abiotic components आते हैं. ये बताता है dependency of biotic और abiotic components की. Biotic are those components which have life in them, and abiotic components are those components which do not have life in them, which do not consist of life. These are not abiotic organism. Abiotics are not organisms because organisms are only those who consist of life. Abiotic things we can say, ठीक है, और abiotic components we can say. ठीक है, ecosystem has 2 components, biotic component and the abiotic component. This is the basic difference between the biodiversity and the ecosystem. अब एक बात सुनो मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक ऐसी जगह जाओ जहाँ आप कभी गए नहीं हो और वहाँ पे आप जाके कई न्यू स्पेशीज़ के बारे में देखेंगे, क्योंकि कई जो नई स्पेशीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि भाई 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पेशीज़ इज़ प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड. इन अबाउट 0.5 मिलियन ऑफ स्पेशीज़ जो है बेसिकली प्लांट्स की है और 1.2 मिलियन स्पेशीज़ बेसिकली एनिमल्स की है. तो अगर आप किसी नए एरिया को एक्सप्लोर करते हैं तो वहाँ डेफिनेटली आपको कुछ नई स्पेशीज़ देखने को मिलेंगी. लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप अपने पुराने एरिया को एक्सप्लोर करते हैं तो वहाँ भी आपको नई स्पेशीज़ देखने को मिलेंगे. अब ऐसी पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि हो सकता है जब आपने पहला अपना पुराना वाला एरिया जो है उसको एक्सप्लोर किया हो तो आपने कुछ मिस्टेक कर दी हो, पूरे एक्सप्लोर ना कर पाए हो आप. तो आप जब नेक्स्ट टाइम करोगे तो आप ठीक से हो सकता है एक्सप्लोर करो उस एरिया को एंड यू विल फाइंड डिफरेंट स्पेशीज़. तो मतलब हम किसी भी एरिया को एक्सप्लोर करें, हम कहीं भी जाएं, वी आर एबल टू फाइंड डिफरेंट स्पेशीज़. स्पेशीज़ आर लॉट, द स्पेशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लॉट, and we humans are not even capable for understanding each and we humans are not able to know about each and every species because about 1.7 to 1.8 million of species are there.
It means 70 lakh to 80 lakh species are there. Just think about the huge number, 70 lakh to 80 lakh. So, if I tell you everything about biodiversity, I told you everything about biodiversity which are included in your NCERT. ठीक है, देखो बायोडाइवर्सिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा एक टॉपिक है जो बेसिकली NCERT में कुछ 2-4 लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टॉपिक बनता है इन फर्दर क्लासेस. इवन इसका एक अलग से यूनिट होता है बायोडाइवर्सिटी का. बायोडाइवर्सिटी का एक अलग से यूनिट होता है जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है बायोडाइवर्सिटी के बारे में. इस चैप्टर में बेसिकली वी विल टॉक अबाउट नॉमेनक्लेचर कि कैसे कैसे भाई इतने सारे स्पेशीज़ हैं, ठीक है, तो उन स्पेशीज़ का डिफरेंट नाम भी होगा. अब हर जगह एक सा नाम चलना चाहिए जिससे हर लोगों को पता हो कि हाँ ये चीज़ ये है. तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में. नॉमेनक्लेचर बेसिकली साइंटिफिक नेम होते हैं किसी भी स्पीशीज़ के. केमिस्ट्री में अलग होता है नॉमेनक्लेचर, बायोलॉजी में अलग होता है नॉमेनक्लेचर, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम होता है. नॉमेनक्लेचर का बेसिकली मीनिंग होता है साइंटिफिक नेम. ठीक है, नॉमेनक्लेचर बेसिकली एक साइंटिफिक नेम होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को मैं बताऊँ कैलोट्रोपिस के बारे में, डू यू नो अबाउट कैलोट्रोपिस? नहीं जानते हो अभी, ठीक है, क्योंकि कैलोट्रोपिस एक साइंटिफिक नेम है. कैलोट्रोपिस को मदार कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, आंकड़ा कहा जाता है और आग कहा जाता है. हरियाणा में आई थिंक इसे आंकड़ा कहा जाता है, मदार इसे मध्य प्रदेश में कहा जाता है और आग कहीं और कहा जाता है. आग राजस्थान में कहा जाता है इसे. अगर मैं यूपी में आऊँ और कहूँ कि आग दे दो, आग कोई देगा मुझे? आंकड़ा मैं यहाँ यूपी में आऊँ, मैं कहूँ आंकड़ा दे दो, आंकड़ा भी किसी को नहीं पता है. हो सकता है आंकड़ा का मतलब यहाँ पर कुछ और हो, लेकिन आंकड़ा का मतलब वहाँ पे कैलोट्रोपिस है. अब इतने इंडिफरेंसेस को क्रिएट करने में बहुत मतलब ये सारे इंडिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे लिए. इट इज़ सो इन दिस केस इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि साइंटिफिक नेम की बहुत ज़रूरत होती है. यहाँ से अमेरिका चले जाओ, वहाँ पर अगर आप कह देते हो कि आम, चौसा, लंगड़ा, ये जो आपकी लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज में चलती है ना बातें, चौसा, लंगड़ा, दशहरी, ठीक है, अल्फांसो, ये सब जो आपका चलता है ना, ये वहाँ नहीं चलता है. लंगड़ा चौसा वगैरह नहीं चलता है, लूला लंगड़ा वगैरह चौसा वगैरह वहाँ नहीं चलता है. वहाँ बेसिकली इसका साइंटिफिक नेम अगर बोलोगे तो आम मिलेगा वरना नहीं मिलेगा. अब क्या है साइंटिफिक नेम पता है क्या? मैंजीफेरा इंडिका. समझोगे, हर चीज़ को याद करना पड़ेगा. थोड़ी बहुत चीज़ें तो देखो बायो में याद करनी पड़ती हैं, ठीक है. बायो इसलिए लोगों को बोरिंग लगता है क्योंकि यहाँ पे याद करना बहुत पड़ता है, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन बोरिंग नहीं कहूँगा कभी भी, क्योंकि बायो समझने वालों के लिए बहुत आसान हो जाती है. नाम करना क्या है, सॉरी, नाम लर्न करने में क्या दिक्कत हो रही है तुम लोगों को, ठीक है. थोड़ा बहुत तो कैप्चर करो अपने माइंड से यार. इतना अच्छा माइंड तुम्हें दिया भगवान ने, यू आर एबल टू यूज़ इट, यू आर एबल टू यूज़ योर ब्रेन, ठीक है. we have capacity to do everything whatever we want, ठीक है. तो बेसिकली नॉमेनक्लेचर इसलिए करा जाता है, साइंटिफिक नेम इसलिए दिया जाता है टू डू नॉट क्रिएट एनी कन्फ्यूज़न. किसी कन्फ्यूज़न को बंद करने के लिए, किसी कन्फ्यूज़न को ना होने के लिए हम लोग साइंटिफिक नेम का यूज़ करते हैं बेसिकली. अभी नॉमेनक्लेचर जो होते हैं ये भी कैसे दिए जाते हैं, कई सारे रूल्स होते हैं नॉमेनक्लेचर के, ठीक है. कैसे कैसे आप नाम दोगे. फॉर एग्जांपल अगर आप बॉटनी के कंटेक्स्ट में पढ़ें कि बॉटनिकल प्लांट्स वगैरह को आप कैसे नाम दोगे, तो वो होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर के अंदर सभी रूल्स हैं जिसमें आप बॉटनी जैसे सब्जेक्ट्स के स्पेशीज़ को नाम दे सकते हैं. सिमिलरली फॉर एनिमल्स, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर विच इज़ नोन एज ICZN. For viruses, international code for nomenclature of viruses. For bacteria, international code for nomenclature of bacteria. And for botanical plant, international nomenclature of botanical plants. अब बताऊँ आप लोगों को, NCERT में सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में है. एक तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एंड द सेकेंड वन इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. मैंने आपको 4-5 के बारे में बता दिया है क्योंकि ये कई सारे नॉमेनक्लेचर्स होते हैं, रूल्स होते हैं बेसिकली विच आर रिक्वायर्ड to give any name, to give any vernacular name to be scientific name, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट होता है. NCERT में 2 के बारे में, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, हम भी नहीं करेंगे, ठीक है, कि इसके अंदर क्या आता है, क्या क्या चीज़ें हैं, हम अभी नहीं करने वाले. जहाँ तो जूलॉजी में एनिमल्स वगैरह आते हैं और बॉटनी में प्लांट्स वगैरह के बारे में बातें करी जाती है. इतना समझो भी बस, ठीक है.
इसके बाद आता है आपका बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में बेसिकली है क्या कि एक साइंटिस्ट है भाई कैरोलस लिनस, ठीक है। अब इनकी मैं आपको थ्योरी पूरी मतलब अच्छे से बताऊंगा तो आप लोग काफ़ी खुश हो जाओगे, आप लोग मतलब एक तरीके से चकित हो जाओगे, बिकॉज ये अपने वर्क को लेके बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही दृढ़ थे, बहुत ही अच्छे से अपने कामों को करा करते थे। मैं अगर बताऊं तो इनका बहुत ही योगदान है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में। बायनॉमियल का मतलब होता है जहाँ पे बाय मतलब टू, नॉमेनक्लेचर का मतलब साइंटिफिक नेम, मतलब साइंटिफिक नेम में टू कंपोनेंट्स होते हैं। इनका ये कहना था कोई भी साइंटिफिक नेम हो तो उसमें दो कंपोनेंट्स होने चाहिए, जिसको आज के टाइम पे हम लोग एक को जानते हैं जेनेरा नाम से, एक को कहते हैं एपिथेट नाम से। इनका इनिशियल नेम जो था वो था कार्ल वन लिन्ने। कार्ल वन लिन्ने, इनके नाम में खुद 3 कंपोनेंट थे, ठीक है। इनके ये कोई साइंटिफिक नेम नहीं है, इनका नाम है भैया, ठीक है। कौन है महाराज साहब, देखो मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, इसमें अगर फोटो होगा एनसीईआरटी में। एक तो एनसीईआरटी एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखती है, नहीं है भाई, लिन्ने का नहीं है, अर्नेस्ट मेयर का है, चलो छोड़ो वो। तो हाँ, उनका इनिशियल नेम था कार्ल वन लिन्ने, उनके नाम में खुद 3 कंपोनेंट थे। अब भाई वो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर देना चाहते थे, उसका कॉन्सेप्ट बताना चाहते थे, तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, सबसे पहले अपने नेम को 2 कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करा। अब लाइट चली गई है, सॉरी थोड़ा विजिबल नहीं होगा आई थिंक, क्योंकि एक ही लाइट चल रही है, अभी 3 लाइट चल रही थी, वो एक दो मतलब लाइट चल गई तो वो बंद हो गई, अब एक लाइट चल रही है। तो बेसिकली कार्ल वन लिन्ने ने अपने नाम को, जो अपना नाम था उसको, पहले उनके 3 कंपोनेंट्स थे, अब उन्होंने 2 कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। इनिशियली हिज नेम वॉज कार्ल वन लिन्ने एंड नाउ हिज नेम वॉज कार्ल लिन्नेस, ठीक है। उनका अब नाम जो था वो 2 कंपोनेंट में होगा, कार्ल लिन्ने, जिसको आज के टाइम में हम लोग जानते हैं कैरोलस लिन्ने, ठीक है। इनिशियली उनका नाम था कार्ल वन लिन्ने, आज के टाइम पे कैरोलस लिन्ने। तो आप देख रहे हैं अपने वर्क की तरफ, मतलब वो उन्होंने जो बताया वो अपने आप ही फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि सीख देते हैं और लेकिन खुद ही बहुत चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, उन्होंने अपने आप ही फॉलो करा। उन्होंने अपने कॉम्पोनेंट्स जो नेम के थे उनको 3 से कन्वर्ट करके 2 में कन्वर्ट कर दिया, 3 से 2 में कन्वर्ट कर दिया बेसिकली। कैरोलस लिन्ने कहा जाता है, ठीक भाई, फादर ऑफ इन्हें कहा जाता है आपका ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का। तो बेसिकली इन्होंने कहा है जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में आप लोग 2 कंपोनेंट लोगे किसी भी साइंटिफिक नेम के, किसी भी नेम का अगर साइंटिफिक नेम आपको लिखना है, यू विल बी एबल टू, इफ़ यू वांट टू राइट एनी साइंटिफिक नेम ऑफ एनी स्पीशीज, देन व्हाट शुड यू डू इज यू विल टेक ओनली 2 कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग जेनेरा और जेनेरा, एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, जेनेरा, एंड सेकेंड वन इज एपिथेट और स्पीशीज। आगे चल के पढ़ोगे आप लोग जेनेरा के बारे में, स्पीशीज़ के बारे में, इसी चैप्टर में आपको बता दूंगा, हालांकि इसमें इतना है नहीं लेकिन बता दूंगा। एक और अगर एक और हमें क्लास लेनी पड़ेगी वी विल टेक, लेकिन मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट बता दूंगा, ठीक है, जिसमें हम लोग जानेंगे फाइलम के बारे में, किंगडम के किंगडम है, फाइलम है, ऑर्डर है, फैमिली है, जेनेरा है, स्पीशीज़ है। इंपॉर्टेंट है यार, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, आना बेसिक्स होते हैं बॉटनी के, आपको पता ही है। दीज आर सम बेसिक्स विच आर इंक्लूडेड इन बॉटनी, विच आर इंपॉर्टेंट इवन इन बॉटनी, ठीक है, इनके बारे में आपको बताऊंगा। हाँ, तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि अगर किसी चीज़ का आपको साइंटिफिक नेम लिखना है तो उसके 2 कंपोनेंट होने चाहिए, जिन 2 कंपोनेंट में एक होना चाहिए जेनेरा एंड द सेकेंड वन इज अबाउट दी स्पीशीज, ठीक है, एक जेनेरा हो एक स्पीशीज हो। इन्होंने एक और बात कहा था, अगर उसे लिखा जा रहा है, अगर आप जो साइंटिफिक नेम है उसको अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, उसको राइट करा जा रहा है, लिखा जा रहा है, तो बेसिकली उसको इटैलिक में लिखा जाए। इटैलिक वो टेढ़ी लैंग्वेज होती है, नहीं बिल देखा होगा आप लोगों ने बुक्स वगैरह में, शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं कि वो टेढ़ी लैंग्वेज में लिखा जाता है, दैट इज इटैलिक्स, ठीक है। और इनका जो ओरिजिन है वो लैटिन ओरिजिन है। लैटिन एक डेड लैंग्वेज है बेसिकली, लैटिन इज बेसिकली डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज इसको किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी लैंग्वेज है जो अबाउट 100 ईयर्स तक भी सर्वाइव रह सकती है। कैसे सर्वाइव रह सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई ये जिंदा उंदा नहीं है लैंग्वेज, इसका मतलब ये है जैसे इंग्लिश में काफ़ी मोल्डिंग हो जाती है, एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, इंग्लिश में कई सारे चेंज होते हैं, लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं है। लैटिन के साथ बेसिकली क्या है कि लैटिन एक ही फॉर्म में कंसिस्ट होती है, जो बेसिकली कभी भी बदलती नहीं है। अबाउट 100 ऑफ ईयर्स भी देखा गया है कि ये बदलती नहीं है, बहुत ही, इसको डेड लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। तो कहा गया था कि इसको बेसिकली इटैलिक्स में लिखो, और इसके लैटिन ओरिजिन को शो करने के लिए, साइंटिफिक नेम के लैटिन ओरिजिन को शो करने के लिए नीचे अंडरलाइन कर दो।
नीचे अंडरलाइन करता हूँ। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, कभी भी आपका प्रैक्टिकल वगैरह हो, कई कई चीज़ें होती है ना, कुछ लिखना हो बायो में जिसमें आप लोग साइंटिफिक नेम के बारे में लिख रहे हो, तो मेक श्योर कि आपका जो एक जेनरा होना चाहिए, एक स्पेशीज होना चाहिए, जिसके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए और थोड़ा सा इटैलिक्स में लिख दीजिए। साथ ही साथ जो जेनरा होता है आपका इनिशियल वर्ड, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए, वहीं पे जो सेकंड नेम है वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, मतलब स्पेशीज का जो नेम है वो स्मॉल से स्टार्ट होना चाहिए, और जो जेनरा का नेम है वो बेसिकली एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका में एम जो होगा इनिशियल वाला, वो मैंजीफेरा वाला, वो एम जो है वो कैपिटल होगा, इंडिका में आई छोटा होगा। अब मान लो मैंजीफेरा इंडिका को देने वाले योग्य व्यक्ति का नाम है लिन, लिन नाम है उसका, तो अगर आपको उसको संबोधित करना है, उसको भी बता, मतलब उसका भी सम्मान करना है, तो उसके मैंजीफेरा इंडिका के बाद आप लोग लिन लिख दीजिए, लिन। तो वहाँ से उस साइंटिस्ट का भी थोड़ा बहुत सम्मान हो गया, लेकिन वो अंडरलाइन नहीं होगा, ध्यान रखना, वो अंडरलाइन नहीं होगा, वो सिंपली लिखा जाएगा, वो अंडरलाइन नहीं होता है। ठीक है, कुछ कॉमन आप लोगों ने वही साइंटिफिक नेम सुने होंगे, जैसा आदमियों का, हम ह्यूमंस का होमो सेपियंस, आदमी नहीं, आई मीन ह्यूमंस का, ठीक है, होमो सेपियंस। ठीक है, कई सारे भी पढ़ोगे यार आप लोग, मस्का डोमेस्टिका आपका मक्खी का होता है, ठीक है, पाइसम सेटिवम पी का होता है, ये आप जो मटर खाते हो, ठीक है, ट्रिटिकम सेटिवम वीट का होता है, आप लोग पढ़ोगे आगे, मैंजीफेरा इंडिका बता दिया मैंने आपको, और बहुत पढ़ोगे चीज़ें आगे। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बता दिया आप लोगों को, बायोडाइवर्सिटी बता दिया और नॉमेनक्लेचर बता दिया, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर मैंने आपको इतना बताया। अब टॉपिक क्या रह गया हमारा, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में मैंने आप लोगों को बेसिकली बता दिया कि जेनरा क्या होता है, स्पेशीज़ क्या होती है, और उसके अंदर बता दिया कि कैसे वर्ड्स को लिखा जाता है। ठीक है, और आई थिंक मेरा आज से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज का जो होना था वो कंप्लीट हो गया, बिकॉज आज के मुझे लग रहा है मैंने सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिए हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट रह नहीं गया है इसमें आपके बायोलॉजी का, सॉरी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में। मैं बेसिकली एक बार बुक में देख लेता हूँ, बुक में कुछ रह गया हो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में क्या रह गया, क्योंकि टैक्सोनॉमी का पार्ट आगे आ जाएगा। टैक्सोनॉमी के पार्ट में आप लोग क्लासिफिकेशन CICN के बारे में पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड नॉमेनक्लेचर। उससे पहले आपका जेनेरिक नेम हो गया, स्पेसिफिक एपिथेट हो गया, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। रूल्स बता दिए मैंने आपको, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। ठीक है, बता दिया, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन, बता दिया आपको। The first word in biological name represented the genus, which is the second component denotes the specific epithet, बता दिया second component क्या है, epithet, और वो first component होता है। Both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin, मैंने आपको सब बता दिया है। और इसके बाद द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्टिंग विद द स्मॉल लेटर, इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, कुछ मत करो, हो जाएगा तो हो जाएगा। तो इसके बाद आपका टैक्सोनॉमी स्टार्ट है। टैक्सोनॉमी आज नहीं करेंगे हम लोग, टैक्सोनॉमी बहुत कम, मतलब टैक्सोनॉमी के बाद क्या रह गया आपका, टैक्सोनॉमी के बाद बेसिकली आपका जो मेन टॉपिक रह जाएगा वो सिस्टमैटिक्स रह जाएगा, वो भी बहुत स्मॉल चैप्टर है, सॉरी स्मॉल सब टॉपिक है। इसके बाद कुछ बेसिक रह जाएगा आपको, मतलब फैमिली के बारे में जानना है, और वही बात जैसे मैंने आपको बताया था ना, फैमिली के बारे में जानोगे, ऑर्डर के बारे में जान लोगे, और जीनस है, स्पेशीज़ है, इनके फैमिली वगैरह सबके बारे में जानोगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि बेसिकली आपकी 2 क्लासेस और होंगी आज के बाद, और उसमें वी विल डेफिनेटली कवर ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी भगाने में अच्छा नहीं लग रहा है, हल्के हल्के टॉपिक्स पढ़ो, इवन 2 से 3 टॉपिक्स प्रेजेंट डे में एक दिन में बहुत ठीक है, इससे ज़्यादा पढ़ना ठीक है नहीं है। तो ठीक है, वी शुड नाउ बाइंड अप आवर क्लास बिकॉज नाउ आई एम डूइंग सम अदर वर्क, आई एम गोइंग टू ईट माई फूड, आई एम गोइंग टू टेक माई डिनर, एंड आई ऑल्सो लाइक, मुझे बहुत पसंद है भाई पढ़ाना, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा रिवीजन हो रहा है। ठीक है, स्कूल में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी हो पाता है, यहाँ से रिवीजन करके जाओ। आपकी भी आई थिंक कुछ ना कुछ हेल्प हो रही है, वरना मेरी तो हेल्प हो रही है यार। ठीक है, मैं जानता हूँ आपकी भी हेल्प हो रही होगी, जितना इतना बुरा भी नहीं पढ़ाता हूँ, नॉर्मल पढ़ा लेता हूँ छोटा मोटा, वही स्टूडेंट ही हूँ मैं भी। तो जैसा हो रहा है अभी ठीक है, बता देना कोई मिस्टेक हो रही हो, आई विल ट्राई टू मेक इम्प्रूवमेंट। ठीक है, और जैसा बताया मैंने आपको कि मैं एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेके आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट। ठीक है, अगर वो प्रिपेयर होता है, क्योंकि मुझे उसकी पॉसिबिलिटी लग रही है कि हाँ प्रिपेयर हो सकता है, और बिल्कुल प्रिपेयर हो पाएगा। ठीक है,
अगर वो प्रिपेयर होता है आई विल डेफिनेटली टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट, ठीक है। जब तक कि आपका समर हॉलीडेज़ पड़ेंगे तब तक बता दूंगा आपको, ठीक है। आई विल मेक अरेंज एंड देन टेल यू। So thank you for watching this video, and I think that you definitely enjoy today's lecture. If you really enjoy, then please comment below about your opinion about my teaching and each and everything whatever you want to tell about me, ठीक है। कैसा लगा लेक्चर बताना, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और जैसा हो बताना, ठीक है। वी शुड वाइंड अप दिस क्लास। बाय गाइस, बाय बाय।